Welcome to all of you. This is my fifth video related to class 11 business studies. Student, in the previous video, we have learned about the industry and commerce. We have learned with the various type of industries present in our country, various type of trade, commerce which are available in our country, internal trade, external trade. Now, student, in today's topic, we will learn about the commerce auxiliaries to trade. We have learned in the previous video trade and various trade related services. In today's video we will learn auxiliaries to trade. Basically, what is the meaning of auxiliaries to trade? Those services which are helpful, which provide help in doing our business activities, which do help in our business activities. What is auxiliaries to trade? What is the definition of auxiliaries to trade? Activities which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade. जो ट्रेड में इंडस्ट्री में हेल्प करती हैं जो सर्विसेज, that are known as auxiliaries to trade. So what is the definition of auxiliaries to trade? Activities which are meant for assisting trade are known as auxiliaries to trade. That means that they are helpful for trade, that are known as auxiliaries to trade. These activities are generally referred to as service. इनको इन एक्टिविटीज को कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? सर्विस. बिकॉज दीज आर इन नेचर ऑफ फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंडस्ट्री एंड ट्रेड. दैट मीन्स ये हम किसी चीज को हाथ लगा के बोलेंगे कि दैट इज ए पर्टिकुलर सर्विस. नो, इट्स नॉट दैट. इट्स प्रोवाइड सर्विसेज. जो हम बेसिकली प्रोडक्शन, जो हमारी इंडस्ट्रीज में वर्क होता है या अदर जो ट्रेड रिलेटेड वर्क है, उनको स्मूथली रन करने के लिए जो एक्टिविटीज वी हैव डन, तो बेसिकली ये एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? दैट आर auxiliaries to trade. Examples of auxiliaries to trade are transport, banking, insurance, warehousing, and advertising are regarded as auxiliaries to trade. That means these services considered in auxiliaries to trade. Student, this one you note down in a copy, and these lines we just read it here. Auxiliaries are an integral part of commerce in particular and business activities in general. These activities help in removing various hindrances. In the previous video, we have learned the various type of activities that remove various type of hindrances in our businesses. Hindrances related to person, hindrances related to place, hindrances related to time, communication. So various hindrances are removed by various auxiliaries through trade or various type of services. These activities help in removing various hindrances which arise in connection with the production and distribution of goods. तो स्टूडेंट, यहाँ पे जो पैराग्राफ है और जो मैंने पहले पैराग्राफ हिंड्रेंसेस वाला कराया था, कंप्लीटली आर द सेम. यहाँ पे भी मैंने इसको अंडरलाइन किया है. यू मस्ट रीड इट. Transport facilitate movement goods from one place to another. Banking provide financial assistance to the manufacturer and trader. Insurance cover various kind of business risks. Warehousing creates time utility by way of storage facility. Advertising provide information to the consumers. These are the various facilities, services which remove various type of hindrances. ठीक है. ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो हमने 5, 4 to 6 जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हमने रीड करी है, अब हम उनको बारे में वन बाय वन यहाँ पे डिटेल में हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. As you already know that transport helps in providing goods from one place to another. Provide goods from the place of manufacturer to the place of consumer.
here I am reading, production of goods generally take place in particular location. As you already know that production is placed on one, just like suppose कोई प्रोडक्ट है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सपोज कीजिए गुड़गांव में है, चेन्नई में है, लेकिन उसके जो कस्टमर है वो ऑल ओवर इंडिया है, तो बेसिकली किस किस से हम प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सम एग्जांपल इज आर गिवन इन योर बुक. जस्ट लाइक टी इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन आसाम, cotton in Gujarat and Maharashtra, jute in West Bengal and Odisha, sugar in UP, Bihar and Maharashtra, and so on. But these goods are required for consumption in different parts of the country. The obstacle of place is removed by transportation. किस तरीके से रिमूव करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और ट्रांसपोर्टेशन किस वे में हो सकता है? इट मे बी बाय रोड, इट मे बी बाय एयर, इट मे बी बाय वाटर, जो भी हमारे लिए कन्वीनियंट है तो हम वो वाला ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे. सपोज कीजिए वी विल ब्रिंग सम कार्स through different countries, then in that case we use coastal shipping, coastal transportation. तो हम जो कार्स है उनको किस में लोडिंग करेंगे? विद द हेल्प ऑफ शिप्स. शिप्स की हेल्प से वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम उन कार्स को क्या हमारी कंट्री में लेके आएंगे. तो जो प्रोडक्ट, जो वे हमारे लिए कन्वीनियंट है, हम वो वे चूज करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए. सपोज कीजिए if we want to bring oil from different country, तो हम पाइप्स का यूज करेंगे. तो दैट मीन्स कहने का मतलब है जैसा हमारा प्रोडक्ट है, जैसी हमारी सर्विसेज है, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा ट्रांसपोर्ट मेथड, ट्रांसपोर्ट वे चूज करेंगे. That obstacle of place is removed by transportation through road, rail or coastal shipping. Transport facilitate movement of raw material to the place of production, to the finished product, from factories to the place of consumption. फैक्ट्रीज में क्या होता है? गुड्स प्रोड्यूस होता है. प्लेस ऑफ कंजम्पशन, दैट मीन्स जहां पे हमारे कस्टमर्स अवेलेबल है हमारे प्रोडक्ट के. तो डेफिनेटली वो दोनों चीजें क्या होंगी? डिफरेंट होगी प्रोडक्ट की. तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन we can provide the goods to the ultimate consumer. Is it clear? Along with transport facility, there is also a need for communication facility. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है. अब कम्युनिकेशन फैसिलिटी की बात करें तो कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जस्ट लाइक हमें कोई भी मैसेज करना है, मेल करना है, सपोज कीजिए हमें प्रायर ऑर्डर देना है कि हमें इतनी क्वांटिटी गुड चाहिए, तो विदाउट कम्युनिकेशन वी कैन डू नथिंग. हम कुछ भी नहीं कर सकते. कम्युनिकेशन के हेल्प से ही हम प्रॉपर जो हमारा वर्क है वो कर सकते हैं. तो कम्युनिकेशन फैसिलिटेट सो दैट प्रोड्यूसर, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर में एक्सचेंज इंफॉर्मेशन with one another. Thus, postal services, telephone facilities may also regarded as auxiliaries to business activities. Is it clear? First one, transport and communication. स्टूडेंट यहाँ पे आपको आप देखेंगे कि ये टॉपिक्स आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं. इनके बारे में आपको सबको नॉलेज है, और आप जैसे जैसे इसको रीड कर रहे होंगे तो आपको ये इजी भी लग रहे होंगे. हम यहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है उनके बारे में पढ़ रहे हैं. आगे हम देखेंगे जो बैंकिंग एंड फाइनेंस है या इंश्योरेंस है, ये हमारे एक सेपरेट चैप्टर्स हैं. अभी यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन है, जैसे जस्ट लाइक चैप्टर नंबर 4 वेरियस सर्विसेज. तो हम वहाँ पे कंप्लीट स्टडी करेंगे कि बैंक किस तरीके से वर्क करता है, हाउ इंश्योरेंस कंपनीज वर्क. तो यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे बिजनेस में ये सर्विसेज या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है. Next topic is banking and finance. This is the second auxiliaries to trade. Banking and finance, you know it very well that banks are very helpful for our business. Bank provide finance funds according to our requirement. If we have not sufficient fund, that in that case we can borrow loan from bank or various financial institution for our work, for smoothly running of our business.
what is the definition, what is given it here? Business activities cannot be undertaken unless funds are available for acquiring assets. जब तक फंड नहीं होगा हम बिजनेस नहीं कर सकते. और इट इज सिंपली सेड दैट मनी इज द ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. यदि आपके पास फाइनेंस है तभी आप एक बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप ड्रीम तो बहुत क्रिएट कर सकते हैं लेकिन आप उनको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं. परचेजिंग रॉ मटेरियल, यहाँ पे इसके बारे में गिवन है, बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग असेट्स, purchasing raw material and meeting other expenses. Necessary funds can be obtained by businessmen from a bank. Thus, banking help business activities to overcome the problem of finance. Is it clear? Commercial banks generally lend money by providing overdraft, cash credit, loan, advances. तो इन सब फैसिलिटीज के थ्रू हमें क्या करती है, वेरियस वेज से बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है. यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कैश क्रेडिट है, लोन है, एडवांसेस है, मैं यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसका एक सेपरेट चैप्टर है. यहाँ पे उसमें हर चीज के इसके जो भी है इनके बारे में क्लियर एक्सप्लेन गिवन है, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगी. सिंपली ये मैं बोलूँ तो इट्स अ वेरियस फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग लोन बाय बैंक. It may be bank overdraft, it may be loan and advances. Is it clear? Bank also undertake collection of check, remittance of funds to different places, and discounting of bills on behalf of traders. Is it clear? In foreign trade, commercial bank helps export in collecting money from importer. आप फॉरेन ट्रेड में देखेंगे, अभी तक सिर्फ सुना होगा. एक जनरल ट्रेड भी बात करें, foreign trade, if we are doing foreign trade, then two different countries are involved in that particular transaction and their currency, their legal tender is also different. So in that case, bank help us to collecting money and convert according to our currency. Is it clear? आप देखेंगे जो सबसे लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें बैंक को इन्वॉल्व करना पड़ता है. बैंक किस तरीके से दूसरी करेंसी की, जो कंट्री की करेंसी है उनको लेता है, एक्सचेंज करता है, हमें हमारी करेंसी प्रोवाइड करता है. तो बैंक हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. इन फॉरेन ट्रेड, कमर्शियल बैंक हेल्प exports in collecting money from importers. Commercial bank also help promoters to companies to raise capital from the public. Is it clear? Now student, we are moving the third auxiliaries to trade or third service, insurance. इंश्योरेंस आप सब जानते होंगे, आप लोग देखते होंगे कि घर में भी आपकी फैमिली मेंबर्स ने भी इंश्योरेंस करवाया हुआ होगा. आप देखेंगे कि आपके घर में कोई व्हीकल है तो आपकी फैमिली मेंबर्स ने उसका भी इंश्योरेंस ले रखा होगा. बेसिकली इंश्योरेंस क्या है? इट इज ए रिस्क कवर. यदि सपोज कीजिए हमने कार ली है, कार के चोरी होने के, उसके डैमेजेस होने के चांसेस पूरे हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं. और इंश्योरेंस बेसिकली क्या है, एक स्मॉल अमाउंट हम मंथली एनुअली क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं और उसके बदले में वो हमें क्या देती है, रिस्क कवरेज. दैट मीन्स यदि कुछ इवेंट होता है तो उसके बदले में हमें कार कंपनी पूरा रुपए हमको, जितना हमारा लॉसेस है उतना एक्चुअल लॉस अमाउंट हमको प्रोवाइड कर देगी. तो बेसिकली हम क्या होते हैं, उस टेंशन से फ्री हो जाते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करने से. तो जो वेरियस टाइप ऑफ रिस्क है, बिजनेस में भी हम देखें तो रिस्क रिलेटेड टू अवर गुड्स, रिस्क रिलेटेड टू डैमेजेस, फायर, थेफ्ट, वेरियस टाइप ऑफ रिस्क रिलेटेड इन अवर बिजनेस. तो बेसिकली हम इंश्योरेंस कराते हैं उन गुड्स का और हम क्या हो जाते हैं, बेसिकली हम श्योर हो जाते हैं कि यदि हमें कुछ लॉसेस होते हैं तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड फुल अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉसेस. सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हम सपोज कीजिए बहुत कॉस्टली कोई
कार है या बहुत कॉस्टली हम कोई गुड्स हम फॉरेन कंट्री से मंगवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन यूज किया है। वाटरवेज में हमने शिप यूज की है, पूरी शिप हो सकता है वो पूरा का पूरा समुद्र में डूब जाए, हो सकता है कि पूरा का पूरा वहां पे कोई उसको चोरी कर ले जो भी मटेरियल है, और हमने सपोज की शिप जो गुड्स मंगा रहे हैं उसकी वर्थ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपीज है, और उससे भी ज्यादा हो सकती है। यदि उस केस में सपोज करो हमें लॉसेस हो जाता है, हमारे गुड्स लॉसेस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, पूरा सी जो शिप है पूरा पानी में डूब जाता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे तो पूरा फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएगा हमारा, हो सकता है हमें हमारा बिजनेस बंद करना पड़े, हो सकता है हमारा वो ट्रांजेक्शन ना हो सकता है उसकी वजह से हमारा बिजनेस में जो वर्क है वो रुक जाए। तो उस केस में क्या होता है, हम एक स्मॉल अमाउंट प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और उसके बदले वो हमें क्या करती है, रिस्क कवर करती है। यदि सपोज कीजिए हमारे लॉसेस भी हो जाते हैं, यदि गुड्स भी खो जाते हैं और भी कोई रीजन हो जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हमें वो अमाउंट जो हमें एक्चुअल लॉस अमाउंट हुआ होगा वो हमें प्रोवाइड कर देती है। तो दैट मीन्स हमें जो लॉसेस होते हैं जो भी हमारी अमाउंट है तो हम उससे तो फ्री रहते हैं, हमें माइंड में ये तो नहीं रहता कि यदि कुछ ऐसा हो गया तो हम कैसे करेंगे, हमारे को यदि इंश्योरेंस कंपनी से रुपए रिसीव हो जाएंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, फर्दर गुड्स को परचेज कर सकते हैं। एक जनरल इंट्रोडक्शन था, एक सिंपली मैंने इंश्योरेंस के बारे में बताया, ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इन द नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 we have learned detailedly various type of insurance, how insurance work, various type of principle of insurance. It's just an introductory class, introductory chapter of various type of function, various type of activities that are doing in our business. So basically it's just an introduction. What is the insurance? Business involve various type of risks, factory, building, machinery, furniture, etc. Must be protected against fire, theft and other risks. Material and goods help in stock or in transit. What is the meaning of transit? That means goods are in way. दैट मीन्स जो गुड्स प्रोड्यूसर के पास से निकल गए हैं लेकिन मैनी जो कंज्यूमर है उसके पास में नहीं पहुंचे हैं, सेलर के पास में नहीं पहुंचे हैं, वो अभी रास्ते में है, तो दैट मीन्स इन ट्रांजिट आर सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेजेस. Employees are also required to be protected against the risk of accidental and occupational hazards. एम्प्लॉइज का भी इंश्योरेंस कराते हैं, आप देखते होंगे वेरियस जो भी आपके पेरेंट्स है, जो भी आपके घर में जो भी वर्क कर रहे हैं, तो आप देखते हैं उनका भी इंश्योरेंस कवर होता है. रीजन बिहाइंड दैट यदि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्क यदि उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उनको वो अमाउंट प्रोवाइड कर देती है. इवन आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का भी आप देखेंगे कि वेरियस यूनिवर्सिटीज में एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे टेक सम चार्जेस एज इंश्योरेंस. यदि स्कूल टाइम में ड्यूरेशन में कुछ भी होता है, कोई भी एक्सीडेंटल केस होता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी एक अमाउंट आपको आपके पेरेंट्स को प्रोवाइड करती है. तो इंश्योरेंस क्या करती है, बेसिकली इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन इन ऑल सच केसेस. On payment of nominal premium, the amount of loss or damages and compensation for injury, if any, can be recovered from the insurance company. Is it clear? प्रीमियम क्या होता है, बेसिकली हम जो भी हमें वो बेनिफिट मिलता है उसका हम एक अमाउंट, उस बेनिफिट के लिए हम एक अमाउंट पे करते हैं और वो अमाउंट ही उसको हम कहते हैं प्रीमियम. Fourth thing that we must read in auxiliaries to trade is warehousing. वेयरहाउसिंग भी आपके आगे इसका क्लियर गिवन है, यहाँ पे सिंपली मैं बताती हूँ. वेयरहाउसिंग एक बेसिकली एक सर्विसेज है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और गवर्नमेंट के अलावा जो जो बिग बिजनेसमैन है वो उनके खुद के वेयर हाउसेज होते हैं. तो बेसिकली वेयर हाउस है क्या, इट्स ए स्टोरेज फैसिलिटी फॉर ए स्टोक. इट्स ए स्टोरेज फैसिलिटी फॉर स्टॉक. आप देखते हैं कि जस्ट लाइक अपन बात करें wheat crop is grown in April season, May season, and we consume wheat throughout the year.
तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कुछ पर्टिकुलर सीजन में होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हम बात करें कुछ गुड्स जो हम प्रोड्यूस करते हैं लेकिन उनको इमीडिएटली हमें उस कंडीशन में रखना है, तो हमें वेयर हाउसिंग की जरूरत होती है, स्टोरेज की जरूरत होती है। सपोज कीजिए हम आइसक्रीम का एग्जाम्पल लेते हैं। आइसक्रीम डेफिनेटली फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होती है, और लेकिन हमें उन आइसक्रीम को वही कोल्ड रखने के लिए, आपको पता है जैसे ही आइसक्रीम एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगी वो मेल्ट हो जाएगी, हम वो आगे हम इसको सेल नहीं कर सकते। तो बेसिकली उसे कोल्ड में रखने के लिए हमें कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, उस टाइप के वेयर हाउसेस डेवलप करते हैं। तो बेसिकली वेयर हाउस इज रिलेटेड टू द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर स्टोक। यहाँ पे मैं वेयर हाउस के बारे में रीड कर रही हूँ। यूजली गुड्स आर नॉट सोल्ड और कंज्यूम इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन, दे आर हेल्ड इन स्टॉक टू मेक देम अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। Special arrangements must be made for the storage of goods to prevent loss or damages. Warehousing helps business firm to overcome the problem of storage and facilitate the availability of goods when needed. Prices are thereby maintained at a reasonable rate level through continuous supply of goods. Is it clear? यदि हम टाइमली गुड्स को सप्लाई करते रहेंगे तो प्राइसेस भी हमारी क्या रहेगी, नॉर्मल मेंटेन रहेगी। यदि सपोज कीजिए वेयर हाउस फैसिलिटी नहीं होगी तो जितना प्रोडक्शन होगा हमें इमीडिएटली सेल करना पड़ेगा, और जब हो सकता है सेल कर दो और एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट और हम गुड्स को अवेलेबल ना कर पाए, तो उस केस में प्राइसेस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपने ब्लैक मार्केटिंग देखा होगा। ब्लैक मार्केटिंग में क्या होता है कि गुड्स अवेलेबल नहीं होते मार्केट में, तो उनकी प्राइसेस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और जब हाई प्राइसेस होती है तब वो गुड्स हमें अवेलेबल होते हैं, तो दैट मीन्स हमने उस गुड्स के पर्टिकुलर हाई चार्जेस पे किए होते हैं। तो बेसिकली वेयर हाउस प्रोवाइड द फैसिलिटी और रिलेटेड टू storage of goods. Fifth is advertising. Advertising is basically very important thing from the business point of view. सपोज कीजिए इफ आई एम ए प्रोड्यूसर, मैं कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ। सपोज कीजिए मैं मैगी बनाती हूँ, मैगी है और मैंने रेडी टू ईट मैगी मैं मार्केट में लेके आई हूँ, तो कैसे पता पड़ेगा कंज्यूमर को, वो कैसे जाके शॉप पे जाके उसको परचेज करेगा, उसे तो आइडिया नहीं है ना। तो डेफिनेटली जो बिजनेसेस है उनको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, वेरियस वेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट चूज करने पड़ेंगे। हो सकता है वो टेलीविजन पे एड शो करे, हो सकता है रेडियो पे, एफएम पे, जो पैम्पलेट्स है उनके थ्रू, किसी भी थ्रू से हमें जो कस्टमर है उसके एक्सपेक्टेड कस्टमर्स है वहां तक वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, प्रोड्यूसर की है। क्योंकि जब किसी कस्टमर को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी वो गुड्स को क्या कर पाएगा, परचेज कर पाएगा। सपोज कीजिए मेरे पास में एक रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है, मुझे तो नहीं पता पड़ेगा ना कि घर बैठे बैठे कि कोई रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। हो सकता है जो रेस्टोरेंट ओनर है पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करे, एडवर्टाइजमेंट कुछ कैंपेन रखे, तो जाके मुझे पता पड़ता है कि यस देयर इज अ रेस्टोरेंट, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट इन आवर लोकेलिटी। तो मैं हो सकता है वहां पे जाके वहां का फूड ट्राई करूं। तो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, इट्स बेसिकली कम्युनिकेट, it's doing communication between buyer and seller. Is it clear? What is it? Advertising is one of the most important method of promoting the sale of products, particularly consumer goods like electronic and automobile goods, soaps, detergent, etc. Most of these goods are manufactured and supplied in market by numerous firms, big or small. It is particularly impossible for producer and trader to contact each and every customer. Thus, for promoting sales, information about the goods and services available there, feature, price, etc. must reach potential buyers. Also, there is a need to persuade potential buyer about the uses, quality, prices, competitive information about the goods and services, etc. Advertising helps in providing information about available goods and services and inducing customers to buy particular item. Is it clear? So here we have read
5 type of auxiliaries to trade. First, first auxiliaries to trade is transport and communication. Second auxiliaries to trade is banking and finance. Third auxiliaries to trade is insurance. And the fourth one auxiliaries to trade is warehousing, and the fifth and the last one is advertising. So basically we have learned here that there are 5 type of auxiliaries to trade or services which are very helpful for doing business, smooth running of our business. Is it clear, student? Now we are moving the next topic of our chapter. This is the objective of business. What are the objective of business? First, what are the objectives of business, in which we read objective refers to all that the business people want to get in return of what they do. Is it clear? तो ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है कि हम यदि कोई काम कर रहे हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिले. ऐसा हो सकता है किसी के लिए रिटर्न में सेल्फ सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए हो सकता है प्रॉफिट इंपॉर्टेंट हो. तो ऑब्जेक्टिव रेफर टू ऑल दैट द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू. इज इट क्लियर? यदि वो जो भी करते हैं उसके लिए रिटर्न में क्या चाहते हैं, दैट इज ऑब्जेक्टिव. सपोज कीजिए यू आर स्टूडेंट एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस स्टडी. तो हो सकता है एग्जाम में परसेंटेज हो, definitely exam percentage, your upgradation. So various type of objectives are of you, all of you. So in business there are also many objective in our business. In generally believe that business activities carried only for profit. Business only for profit. Business person themselves proclaim that their primary object to produce or distribute goods or services फॉर प्रॉफिट. बेसिकली हम देखेंगे जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, जो मेन ऑब्जेक्टिव है जिसके बिना तो शायद कोई बिजनेस हो भी नहीं सकता, और हमने बिजनेस की डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि प्रॉफिट अर्निंग. तो सो बेसिकली प्रॉफिट अर्निंग इज अ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. एंड there are various other objectives of business. There are various other objectives of business. Here I am reading it here. Business person proclaim that their primary business person themselves proclaim that their primary objective is to produce or distribute goods or services for profit. Every business is set to an attempt on the part of business people to get more than what has been spent or invested. Definitely हर जो बिजनेसमैन है वो ये चाहेगा कि यदि उसने जो भी पैसा, जो भी फाइनेंस उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उससे डेफिनेटली ज्यादा वो क्या करे, उस बिजनेस से अर्न करे. यदि जितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया है उससे कम वो अर्न करता है तो दैट मीन्स वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा, उसको बिजनेस में लॉसेस स्टार्ट हो जाएंगे. हाउएवर इट इज बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज्ड नाउडेज दैट बिजनेस एंटरप्राइज आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड नीड टू फुलफिल सेवरल ऑब्जेक्टिव्स. सोसाइटी का पार्ट है तो सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग इज नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. देयर आर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स just like social responsibility to survive and prosper in the long run. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना, शॉर्ट टर्म के अलावा लॉन्ग टर्म में भी सर्वाइव करना. तो ये सब मेन रीजंस होते हैं किसके, एक बिजनेस के. Although earning profit cannot only the objective of business, its importance cannot be ignored. Every business is an attempt to reap more than what has been invested and profit.
प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। यहाँ पे बताया गया प्रॉफिट किसे कहा गया है, तो प्रॉफिट बेसिकली किसे कहते हैं, सपोज कीजिए मैंने एक कोई चीज परचेज किया 100 रुपीज में और मैंने उसको 110 में सेल कर दिया, तो जो 110 माइनस 100, तो जो 10 रुपीज है दैट इज द प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक और दैट पर्टिकुलर गुड। तो उसी तरीके से बिजनेस में जो भी हमारी कॉस्ट है और जो उसके अलावा जो भी कॉस्ट माइनस जो भी उस प्रोडक्ट की प्राइस है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। अब ये बोला है कि प्रॉफिट अर्न करना, यहाँ पे बताए गए कुछ पॉइंट्स की प्रॉफिट ही मेन ऑब्जेक्टिव तो होता है, अदर ऑब्जेक्टिव्स भी बिजनेस को फुलफिल करने पड़ते हैं, लेकिन व्हाट इज द मेन, why business profit is the main objective of any business, profit क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए, क्या रीजन है। तो प्रॉफिट में भी रिगार्डेड एज एन असेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर वेरियस रीजन। फर्स्ट वन, इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर बिजनेस पर्सन। आप देखेंगे कि बिजनेस में हर हर लेवल पे एक बिजनेसमैन को एक्सपेंडिचर है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट, व्हाट एवर। लेकिन जो सेल करेगा उससे ही वो क्या कर सकता है, एक अमाउंट अर्न कर सकता है, और उसके लिए इनकम का सोर्स सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉफिट है। सिर्फ इट कैन बी सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। सेकंड थिंग, वो प्रॉफिट के थ्रू ही क्या कर सकता है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकता है, बढ़ा सकता है। सपोज कीजिए किसी ने पर्सन ने आज बिजनेस स्टार्ट किया, धीरे 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 वो प्रॉफिट अर्न करेगा, और वो प्रॉफिट अर्न कर करके ही वो बिजनेस को क्या कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है। तो फर्स्ट वन क्या है, it is a source of income for a business person. Second one, it can be a source of finance for meeting expansion requirement of business. Third है, it indicate the efficient working of business. थर्ड जो प्रॉफिट का रीजन क्या है, एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है, क्या रीजन है कि यदि आपको बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो दैट इट इंडिकेट दैट इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द बिजनेस, कि आप बिजनेस अच्छा से कर रहे हैं। यदि आप बिजनेस अच्छा से नहीं कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा। फोर्थ है, इट कैन बी टेकन एज द सोसाइटीज अप्रूवल फॉर द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। फोर्थ है कि यदि आपको प्रॉफिट है तभी आप क्या ले सकते हैं, सोसाइटी से अप्रूवल ले सकते हैं आप उन चीजों को यूज करने के लिए। इट कैन बी टेकन एज अ सोसाइटी अप्रूवल ऑफ द यूटिलिटी ऑफ बिजनेस। फिफ्थ है, इट बिल्ड द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जो प्रॉफिट मेकिंग होंगे वो उनके बिजनेस की धीरे धीरे क्या होती है, रेपुटेशन इंक्रीज होती है। तो ये बेसिकली एक बिजनेस की रेपुटेशन भी इंक्रीज करते हैं। तो basically these are the point that emphasize that the profit is the main objective of any business. Is it clear? However, too much emphasis on profit is to the exclusion of other objective can be dangerous for good business. Suppose कीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपने ना बहुत ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन सपोज कीजिए एम्प्लॉयज पे ओवर टाइम कर दिया है, उनको वर्किंग आवर्स बढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरीज दे रहे हैं लेकिन बोनस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो भी एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने थे वो बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, और प्रॉफिट हो सकता है आप अर्न कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक टाइम बाद में एम्प्लॉय स्ट्राइक कर दे, लॉकआउट कर दे, तो हो सकता है आपका प्रोडक्शन कंप्लीटली रुक जाए, एंड देन आफ्टर यू विल सफर फ्रॉम वेरियस लॉसेस। तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। तो ये हम बिजनेस में टू मच एम्फसाइज, मतलब ज्यादा हम प्रॉफिट ही मेन ऑब्जेक्टिव कंसीडर नहीं कर सकते हैं, हमें और सब चीजों को भी कंसीडर करना पड़ेगा। यदि प्रॉफिट, यदि सिर्फ हमारा प्रॉफिट अर्निंग माइंडसेट रहेगा तो क्या होगा, business managers may neglect all other responsibilities towards customers, employees, investors, and society at the large. They may even be inclined to exploit various sections of society to earn immediate profit. हो सकता है वो इमीडिएट प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनका बेनिफिट होना चाहिए वो ना कर पाए। दिस में रिजल्ट इन द नॉन कोऑपरेशन और इवन अपोजिशन फ्रॉम द अफेक्टेड पीपल अगेंस्ट द malpractices of business enterprises.
यदि आपने सोसाइटी सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ध्यान नहीं रखा है, तो हो सकता है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो लोग हैं वो आपके अगेंस्ट हो जाए, हो सकता है वो आपके बिजनेस को बंद करवा दे, हो सकता है आपके बिजनेस के अगेंस्ट चले जाए, स्ट्राइक कर दे. These enterprises might lose businesses and may be unable to earn profit. That is the reason why there is hardly any sizable business enterprise who only objective is maximization of profit. That means business ke liye only and only profit earning is not the objective of any business. Business also consider the various objectives also. Business also consider various type of objective rather profit making only. Is it clear? So here we read the various multiple objective of business. There are various objectives of business, multiple objectives of business. So student, I am reading here the from here. Objectives are needed in every area where performance and result affect the survival and the prosperity of business. Some of these areas are described as below. First one is market standing. Profit making earning is the definitely is the main objective of any business, but market is but other objectives are also made for business, in which first main objective is market standing. डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव है किसी बिजनेस का, बट मार्केट स्टैंडिंग दैट मीन्स हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स के बीच में भी सर्वाइव रहना. कॉम्पिटिटर्स बेसिकली कौन होते हैं? यहाँ पे आपके लिए न्यू टर्म है तो मैं आपको बताती हूँ. जो आपके जैसा का जैसा सिमिलर बिजनेस मार्केट में कर रहे होते हैं तो दैट आर योर कॉम्पिटिटर्स. बेसिकली यदि सेम बिजनेस से बिलोंग कर रहे हैं, सेम टाइम के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, यदि एक भी डिसीजन उन्होंने चेंज किया तो हो सकता है हमारे बिजनेस पे कंप्लीट इफेक्ट पड़े. तो दैट आर द कॉम्पिटिटर्स बिजनेस. तो मार्केट स्टैंडिंग दैट मीन्स हमें उस कॉम्पिटिशन में भी हमारे बिजनेस को क्या करना है? सर्वाइव करना है. हो सकता है हमें बेटर पॉलिसीज बनानी पड़े, हो सकता है हमें कॉम्पिटिटर से बेटर पॉलिसीज बनानी पड़े, उनसे कम प्राइसेस हमारे प्रोडक्ट की ऑफर करनी पड़े, कैसे भी करके हमें मार्केट में रेपुटेशन क्रिएट करनी है, मार्केट में हमको स्टैंड रहना है. दैट मीन्स हमारे बिजनेस में कोई भी डाउनफॉल ना हो. What is here written? Market standing refers to the position of an enterprise in relation to its competitors. A business enterprise must aim at standing on stronger footing in terms of offering competitive product to its customers and serving them to their satisfaction. Is it clear? Market standing clear हुआ? Next one is सेकेंड हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं दैट इज इनोवेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोवेशन? इनोवेशन मीन्स समथिंग न्यू. यदि सपोज कीजिए घर में आपकी मदर है और वो आपको रिपीटेटिवली आपको वीक में 7 डे सेम ही वेजिटेबल आपको ऑफर कर रही है तो दैट मीन्स आप बोर हो जाओगे. उसी तरीके से यदि आपने बिजनेस में एक एक चीज बना रहे हैं, उसको टाइमली टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है, न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं लेके आए, तो आपका उसी तरीके से बिजनेस में सरवाइव करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा. तो ऑलवेज एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर आपको डिफरेंट इनोवेशन लेके आना है बिजनेस में. सपोज कीजिए पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, अब कलरफुल टीवी आए, तो दैट मीन्स किसी ने तो इनोवेशन किया होगा. देन आफ्टर यू विल सी द एलसीडी टीवी, एलईडी टीवी, दैट इज ए पार्ट, आल्सो ए पार्ट ऑफ इनोवेशन. तो बेसिकली इनोवेशन इज डील विद समथिंग न्यू. तो कोई ना कोई बिजनेस तो डेफिनेटली न्यू लेके ही आएगा और वो कस्टमर्स उसको क्या करेंगे? इजीली उसको, यदि कस्टमर्स के अकॉर्डिंग है तो इजीली उसको परचेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे. तो व्हाट इज इनोवेशन? इनोवेशन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स इन द वे
something is done or made. There are two kind of innovation in every business: innovation in product or service, and innovation in various skills and activities needed to supply product or services. First one बोला innovation in product and service. प्रोडक्ट और सर्विसेज में कुछ इनोवेशन लेके आना. इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यू प्रोडक्ट हो सकता है, इनोवेशन हो सकता है न्यू सर्विस. सेकंड बोला इनोवेशन इन वेरियस स्किल और एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट और सर्विसेज. सपोज कीजिए पहले सारे प्रोडक्ट होलसेलर रिटेलर्स के थ्रू सप्लाई होते थे. अब टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है. अब बहुत सारे ऑनलाइन एप्स के थ्रू है. तो दैट मीन्स सेकंड वे जो यहाँ पे बोला इनोवेशन इन वेरियस स्किल और एक्टिविटीज नीडेड टू सप्लाई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो अब जो चेंजेस आए हैं वो सेकंड पॉइंट के थ्रू आए हैं. तो दैट मीन्स इनोवेशन generate why no business enterprise can flourish in a competitive world without these resources according to the requirement, uses them efficiently. नेक्स्ट हम देखेंगे अर्निंग प्रॉफिट. जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है अर्निंग प्रॉफिट. वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या है? जो आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है. कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग है टोटल कैपिटल. दैट मीन्स जितनी आपके पास थी वो खुद, अदरवाइज जो उसके अलावा एक्स्ट्रा कैपिटल रिक्वायरमेंट थी और आपने वो बोरो करके लगाई है. तो जो ओन फंड है और बोरोड फंड है उनको कलेक्टिवली हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड. तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट इज ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. स्टूडेंट जैसे मैं कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, तो आप यदि आपकी बुक लेके पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इन वर्ड्स का मीनिंग नोट डाउन कर ले. ये छोटे छोटे वर्ड है लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा आगे हेल्पफुल रहेंगे. तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड. Profitability refers to the profit in relation to capital investment. Every business must earn a reasonable profit which is important to its survival and growth. Is it clear? Next one is manager performance and development. जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो क्या है? मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट. हम यहाँ पे देखेंगे बिजनेस एंटरप्राइज नीड मैनेजर्स टू कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिजनेस एक्टिविटी. एक पर्सन के लिए तो सारे बिजनेस एक्टिविटीज को करना इम्पॉसिबल है. एक टी स्टॉल को छोड़ दें अपन, या एक बहुत स्मॉल लेवल के बिजनेस बहुत स्मॉल लेवल के बिजनेस को छोड़ दे, तो आप देखेंगे कि एक बिजनेस को करने के लिए हमें बहुत सारे पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट है. तो हमें यहाँ पे है कि जो मैनेजर्स है तो उनके वर्क को कंडक्ट करवाना, उनसे किस तरीके से करवाना है और उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना, ये भी बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है. वेरियस प्रोग्राम्स for motivating managers to be implemented, manager performance and development. Therefore, it is an important objective. The enterprise must actively work for this purpose. जो managers है उनके लिए भी वो क्या करे? work करे. That means कहने का मतलब है कि जो एक work है, एक एंटरप्रेन्योर तो अकेले उसके लिए पॉसिबल नहीं है सारा वर्क करना, तो वो डिफरेंट मैनेजर से करवाएगी जो डिफरेंट लोगों को है ना वर्क क्या करेगी? प्रोवाइड कराएगी. तो उस केस में उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करना, किस तरीके से उनको मोटिवेट कर सकते हैं ताकि वो वर्क को बहुत अच्छा से कर सके, वो हमें आइडियाज क्रिएट करने, डेवलप करने, उनको इम्प्लीमेंट करना ताकि हम बहुत अच्छा से हमारे वर्क को कंप्लीट कर सके. तो फिफ्थ जो 6 पॉइंट है वो है मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट. 7th पॉइंट है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड. फिर 6 पॉइंट तो जो सीनियर लेवल अथॉरिटीज है उनके लिए, और जो रियल में जो वर्क एग्जीक्यूट करते हैं वो होता है वर्कर. तो हमें वर्कर की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, उनका जो एटीट्यूड है वर्क के लिए वो पॉजिटिव हो. तो हम ऐसा क्या करें कि वो बहुत अच्छा से हमारे वर्क को करे, हमारे जो वर्क को कंप्लीट करे. तो हमें वो सब चीजों को भी ध्यान रखना, उनको मोटिवेट करना, ये भी हमारे बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव है. So worker performance and attitude determine their contribution towards productivity and profitability of any enterprise. Therefore, every enterprise must
aim at improving its worker performance. It should also try to ensure a positive attitude on the part of the worker. Is it clear? Next जो 8 पॉइंट है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स जो हमारे बिजनेस है उसकी हमारे बिजनेस के जो हमारे मेन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना भी जरूरी है. सपोज कीजिए एक हमारा बिजनेस है, हो सकता है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट है उसको पॉल्यूट कर रहा है, तो हमारे को पॉल्यूट नहीं करना है, उसे अलग एरिया में स्टैब्लिश करना है. या फिर हो सकता है हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो आसपास के लोगों की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना. तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म्स टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क in a socially desirable manner. That means जैसा सोसाइटी चाहती है हमें उसके अकॉर्डिंग वर्क करना ही हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है. तो बेसिकली इट्स एन ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस. आप ऐसा कर रहे हो तो दैट मीन्स डेफिनेटली आपकी बिजनेस की गुडविल इंक्रीज हो रही है. और यदि आप नहीं कर रहे हो तो हो सकता है शॉर्ट रन में आप आपके बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर लो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बिजनेस में सर्वाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तो these are all 8 other objective of business. Thus, a business enterprise must have multiple objectives to satisfy individual and groups. This is essential for its own survival and prosperity. That means इन objectives को fulfill करके ही वो खुद survive कर सकता है, खुद अपने business में prosperity लेके आ सकता है. तो उसको ये सब चीज के लिए ये उसके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स है. तो स्टूडेंट आज का मेरा वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है. आपको आज जो भी हमने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में रीड किया है, और या उससे पहले ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में हमने रीड किया था इस वीडियो में, तो आपको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड से रिलेटेड और जो ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस से रिलेटेड उनके आपको जो नोट्स है वो कॉपी में नोट डाउन करने हैं. आपको रीड करना है, लर्न करना है. आपको किसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है वो आपको नोट डाउन करना है. और जो भी हमारी जब भी पर्टिकुलर डेट को जो लाइव स्ट्रीम क्लासेस होती है, आपके जो भी डाउट है उनको मुझसे क्वेश्चंस है जो भी है वो पुट अप कर सकते हैं. मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको उस क्लास में सॉल्व करूंगी. तो फर्स्ट यू रीड ऑल द नोट्स एंड note down all the queries of you all. So student, this class is over now. Okay.